Good morning, students. I am going to start a new chapter from your Movements textbook. Chapter number 4. Name of the chapter is In the Kingdom of Fools, page number 19. First, I am going to introduce you towards the lesson, the main theme of the chapter, and a brief summary. And about the name of the author here is A.K. Ramanujam. The theme of this lesson is, it is believed that the fool is more dangerous than a cruel person. His foolishness can bring about major calamities. The story In the Kingdom of Fools is based on the theme that it requires patience and wisdom to handle people who choose to be foolish. जैसे कि हमने जो चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इससे समझ गए कि ये एक मूर्ख लोगों की कहानी है। उनके राज्य में सारे ही लोग मूर्ख हैं और उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनमें क्या ऐसा होता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रीफ समरी यहाँ पर इस लेसन की है। अ गुरु एंड अ डिसाइपल विजिट अ किंगडम, दे आर सरप्राइज टू फाइंड दैट द होल किंगडम एस्लीप ड्यूरिंग द डे। हमने इस चैप्टर में एक गुरु एक शिष्य इस राज्य में आते हैं और वो बहुत आश्चर्यचकित से देखते हैं कि यहाँ के लोग दिन में सोते हैं। The Dew understood that the people are following the instruction of the king. दोनों समझ गए थे यहाँ के लोग राजा की बात को मान रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। The Guru, being a wise man, decided to leave the place as he realized the danger of staying in the kingdom of fools. ये गुरु समझ गए थे कि वो यहाँ बुद्धिमानों को यहाँ रुकना उचित नहीं है, क्योंकि ये समझ गए थे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। गुरु लीव्स द सिटी बट द डिसाइपल स्टे बिहाइंड टू ईट एंड टू बी मैरी। मगर जो शिष्य था वो यहीं रुक गया। गुरु ने तो यहाँ से तुरंत जाने का निश्चय कर लिया, मगर जो शिष्य था उसे सोचा कि आराम से खाएंगे पिएंगे और मज़े से रहेंगे। A very unfortunate incident happens in the kingdom. In the process of awarding justice to the victim, the king commits one foolish act after another and ultimately succumbs to the wisdom of the guru. He returns to save the life of his disciple. अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा होता है इस स्टोरी में कि जो डिसाइपल जो यहाँ पे रुक जाता है, वो शिष्य जो यहाँ रुक जाता है, वो एक बहुत ही बुरे उसमें फंस जाता है, उसके साजिश का कारण बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो किंगडम मूर्खों का था, यहाँ के राजा ने जब जस्टिस देने का स्टार्ट किया तब क्या हुआ, उन्हें इतने ऐसे फुलिश एक्ट किए एक के बाद एक कि वो जो डिसाइपल था वो यहाँ पर पूरी ही तरह से जाल में फंस चुका था। उसे निकालने के लिए जब यहाँ पर गुरु आए तब उन्होंने उस डिसाइपल की लाइफ को सेव किया। द फुलिश किंग एंड हिज मिनिस्टर फॉल इनटू द ट्रैप सेट बाय द गुरु। अब यहाँ पे जो राजा थे और उनके जो मंत्री थे उस गुरु के जाल में फंस गए। अब एंड में क्या हुआ, इवेंचुअली द गुरु एंड हिज डिसाइपल टेक ओवर द किंगडम एज द किंग एंड द मिनिस्टर। अब इन दोनों ने क्या करा, गुरु और शिष्य ने अब पूरे राज्य को अपने अंडर ले लिया। अब उन दोनों ने उन सबको फंसा दिया और ये दोनों ही राजा और मंत्री बन गए और वापस इस किंगडम में नॉर्मल लाइफस्टाइल को क्रिएट कर दिया एंड रिस्टोर नॉर्मलसी इन दिस किंगडम। अब हम इस चैप्टर को पेज वाइज पढ़ेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। पेज नंबर 19 from your movement textbook. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished till death. The people did so as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब
यहाँ पे जैसे हमने देखा प्रीवियस समरी में भी पढ़ा और अभी थीम्स में हमने देखा कि मूर्खों का राज्य था। यहाँ पे राजा और मंत्री ने मिलकर एक डिसीजन लिया, वो इडियट्स थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि कुछ करना चाहिए हमारे राज्य में, कुछ चीज़ ऐसी अलग से कुछ करनी चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिन को रात में बदल देंगे, रात को दिन में। और उन्होंने ऐसे ऑर्डर्स निकाले और कहा कि जो इनकी बातों को नहीं मानेंगे उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और ऑर्डर्स के हिसाब से उन्होंने कहा कि आपको रात को जगना है, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस, अपने खेतों को रात को जोतना है, अपने व्यापार को रात को चलाना है और सुबह सबको सो जाना है। जैसे ही सूर्योदय हो वैसे उन लोगों ने सब कुछ पालन किया। और एक दिन एक गुरु और शिष्य इस शहर में आए। बहुत खूबसूरत शहर था मगर कोई भी उन्हें नहीं दिखा, एक चूहा तक वहाँ घूमता हुआ नहीं दिखा। और जानवरों को भी उन्होंने ऐसे ही ट्रेन किया था, पशुओं को भी, कि वो दिन में सो जाते, रात को उनके साथ काम करते। और इन लोगों ने देखा कि पूरा दिन कोई नहीं दिखा उन्हें। जैसे शाम ढली वैसे ही पूरा शहर जाग गया और सब अपने अपने बिजनेस करने लग गए। द टू मैन वर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doodoo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a doodoo. The guru and the disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब यहाँ क्या हुआ, दोनों जो गुरु और शिष्य थे वो दिन भर से भूखे थे। जैसे ही रात हुई सब दुकानें खुली। अब इन लोगों ने जाकर कुछ खाने का खरीदने का सोचा। जैसे ही वो खरीदने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ अगर चावल खरीदें तो भी वही कॉस्ट, अगर केले खरीदें तो भी वही कॉस्ट। एक डुडू मीन्स यहाँ पे कन्नड़ वर्ड में मनी या पैसा में, 1 रुपये में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये इनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा, वो डिलाइटेड भी थे कि सब कुछ 1 रुपये ही कॉस्ट करता है। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and wouldn't be a good idea for them to stay there. There is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple did not want to leave the place. Everything was very cheap here. All he wanted was good cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. अब यहाँ पे जो गुरु थे, जब उन्होंने खाना वाना बना लिया, खा लिया, तब उन्होंने देखा और कहा कि यहाँ पे रुकना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, समझदारी की बात नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मगर यहाँ डिसाइपल जो था, उसका शिष्य जो था, वो चाहता था कि यहीं रुके क्योंकि उसे सिर्फ खाना चाहिए था और मज़ा मस्ती चाहिए था। उसे कहा सब कुछ यहाँ पर बहुत सस्ता है, खाने को आराम से मिल जाएगा। मगर गुरु ने कहा कि नहीं, ऐसा हमें यहाँ नहीं रुकना, ये मूर्ख लोग हैं, कुछ ज़्यादा दिन ऐसा चलेगा नहीं, कुछ ऐसा होगा कि हम उसमें से नहीं निकल पाएंगे। मगर शिष्य मानने को तैयार नहीं था। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वांटेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, do what you want, I am going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee, rice, wheat, grew fat like a street side scared bull. अब जो वो शिष्य था गुरु की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। गुरु थक गए, उन्होंने कहा कि अब मैं तो जा रहा हूँ, वो चले गए, तुम्हें जो करना हो तुम करो। वो शिष्य यहाँ रुका, उसने दिन भर खाना पीना किया, खूब घी खाया, केले खाए, चावल गेहूँ सब कुछ बहुत खाया। वो खा के वो मोटा सांड जैसा हो गया था। One bright day, a thief broke into the rich man's merchant's house. He made a hole in the wall and sneaked it, and he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर एक चोर एक बड़े ही साहूकार के घर से चोरी कर भाग रहा था। और भागते भागते वो अपने लूट का माल लेके जब जा रहा था तो उसकी जो घर की जो दीवार थी वो कच्ची थी, शायद वो दीवार गिरकर उस चोर के सिर पर गिर गई और चोर वहीं पर मर गया। उस चोर के भाई ने राजा के पास गया और उससे कंप्लेन की कि इस साहूकार को पनिशमेंट देना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि मेरा भाई अपना जो पैतृक काम था उसे कर रहा था और उनके घर की दीवार ऐसी थी कि उसके सिर पर गिरी और वो वहीं मर गया। इस मर्चेंट को आपको सज़ा देनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि इनको आप मुआवजा दें क्योंकि उनके घर की दीवार के कारण मेरा भाई यहाँ पर मर चुका है, आप इन्हें जस्टिस करें। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने उस घर के मालिक को बुलाया।
When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" Such your highness. जैसे ही वहाँ पर साहूकार आया तो राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, हाँ हाँ ये फलाना फलाना मेरा नाम है। Where you at home when the dead man burglared your house? उसने कहा, क्या तुम घर पे थे जब तुम्हारे घर में चोरी हो रही थी? उसने कहा, yes my lord. He broke in and the wall was weak, it fall on him. उसने कहा कि हाँ, जब वो मेरे घर में आ रहा था उस दीवार तोड़कर, तो दीवार कच्ची थी तो उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. अब उसने कहा कि ये जो अक्यूज्ड है वो बहुत अब तुम गिल्टी हो, और तुमने कहा कि इस व्यक्ति के भाई ने तुम पे केस किया है कि तुमने उसके भाई को मार डाला है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, हमें तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डोंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। अब वो साहूकार ने अब ये ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया? उसने कहा, भगवान मुझे बचाएं। उसने कहा कि नहीं ये दीवार मैंने नहीं बनाई, ये दीवार तो उस दीवार बनाने वाले ने बनाई है, आप उसे पनिश करें, मुझे नहीं। उसने कहा कि हु इज दैट? माई लॉर्ड, दैट दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। उसने कहा ये मेरे सामने नहीं, मेरे पिता के द्वारा बनवाई गई दीवार थी और वो आदमी अब बहुत बूढ़ा है, मैं उसे जानता हूँ, मेरे घर के पास वो रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूड। अब राजा के जो दूत थे वो गए और उस कारीगर को बुला के लाए और उसे हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा किया। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन द फादर्स टाइम? यस माई लॉर्ड, आई डिड। अब उसने कहा कि हाँ मैंने ही ये दीवार बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस व्हाट यू बिल्ट? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। अब राजा ने उस व्यक्ति पे ब्लेम डाल दिया जिसने वो दीवार बनाई थी। उसने कहा कि तुमने कैसी कच्ची दीवार बनाई, तुम्हारी दीवार के कारण एक गरीब आदमी मारा गया, तुमने उसका मर्डर कर दिया, हमें तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा, यू बाय डेथ। Before the king would order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It's true I built this wall and it was not good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down the street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. You must get the dancing girl. I know where she lives." अब वो जिसने ये बनाया था दीवार, उसने आपके ब्लेम किस पे डाल दिया? उन्होंने कहा कि आप मुझे मृत्युदंड दे रहे हो, उससे पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। उस गरीब मजदूर ने क्या कहा, ब्रिकलेयर ने, उसने पूछ के कि आप मेरी बात सुने, आप ऑर्डर्स देने से पहले। ये उसने कहा कि ये दीवार जो मैंने ज़रूर बनाई है और ये सही नहीं बनी, ये भी मुझे पता है, मगर क्यों नहीं बनी? मुझे पता है कि जब मैं दीवार बना रहा था तब एक लड़की अपने पायल की आवाज़ से दिन सुबह शाम यहाँ से गुजरती थी गली से, तो मेरा पूरा ध्यान उसकी पायल की आवाज़ों पर रहता था, मेरा कॉन्सेंट्रेशन उस दीवार बनाने पे नहीं था। आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए और उसे पनिश करना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, we must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. अब उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है, अब हम ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमें पूरा देखना पड़ेगा, अब वो डांसर कहाँ है, चलो हम उसे ढूंढें। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो डांसिंग गर्ल अब बूढ़ी औरत बन चुकी थी। केम ट्रेवलिंग टू द गेट, घुसती हुई वो कोर्ट में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? अब उससे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब वो दीवार बना रहा था तब तुम उस गली में बार बार जाती आती थी, क्या तुमने उसे देखा है? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मैंने उसे ज़रूर देखा, मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तुम वहाँ जा रही थी अपने पायल की आवाज़ बजाते हुए। यू आर रनिंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट किया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इस कारण से उसने बहुत बुरी दीवार बनाई। अब वो क्या होगा, अब वो किस पे ब्लेम करेगी? अब हम ये से आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब वो लेडी किसके ऊपर ये ब्लेम डालती हैं, क्योंकि ये जो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर है, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, एक दूसरे पे वो बिलीव कर रहे हैं। आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।